In this video, we will learn about derivatives. What is derivative? It's all about slope. You can see the figure that with respect to change in x, what is the change in y? Suppose if we have changed 15 units, we have moved 15 units from in on x-axis, then how much units do we have moved on y-axis? And let us take it as 24. It's fine. But if we move this x unit, the distance along axis is very small. It is approachable to 0. Then how will we do that? You can see that in the figure. If it approaches to 0, we are not able to calculate how much we have changed in y. So with the help of derivatives, we will be able to find it out. We have to find out what if the distance on x-axis changes to delta x, then what is the change in y, and that is represented by delta y. What is the symbol delta? The symbol is a kind of triangle. So what if x changes and approaches to 0, then what will be the change in y? Now let us find out the derivative. So what is slope? Slope is change in y upon change in x. If you remember grade 10 mein we have done something which is tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. So this is actually perpendicular upon base only. Change in y upon change in x. So change in y is represented by delta y or triangle y as I have written, and then change in x is represented by delta x. Figure में it is explained very clearly कि अगर fx है और उसके बाद में f of x plus delta x है, then how do we get this? So the formula for the slope is f of x plus delta x minus fx upon delta x. So what we have done is we have found the change in y with respect to change in x. x कहाँ था? पहले x था, उसके बाद x plus delta x हुआ. y कहाँ था? पहले fx था, फिर f of x plus delta x हुआ. Now what is the change in the slope? So the formula for slope is f of x plus delta x minus fx upon delta x. Now what we are trying to do? We are trying to change this delta x approaching 0. So this delta x is almost approaching 0, and this is what we actually mean by derivative. Now see this question. This is example of what we have to do in the question. Suppose the question is fx is equal to x square and we have to find out the derivative. So f of x plus delta x, हमें क्या करना है? x की जगह पर x plus delta x लिखना है. तो देखो हमने x की जगह पर x plus delta x लिखा, तो क्वेश्चन बन गया x plus delta x का होल स्क्वायर. Then we have expanded it, so it is x square plus delta x का होल स्क्वायर plus 2x delta x. अब फॉर्मूला हमारा स्लोप का क्या था? f of x plus delta x minus fx upon delta x. So we have replaced the values. f of x plus delta x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, माइनस fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अपॉन में delta x लिख दिया. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई, जैसे हम अलजेब्रा में सिंप्लीफाई करते हैं. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विद 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर. अब डेल्टा x आप कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर से कैंसिल करोगे, सो यू विल गेट 2x प्लस डेल्टा x. Now since when we began with the question, I told you very clearly that delta x is almost approaching to 0. तो हम delta x को क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे. So the answer will be 2x. So the derivative of function x square is 2x. Now what do you mean by this derivative? Let us see this graph. fx is equal to x square था, डेरिवेटिव आया 2x. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम fx is equal to x square का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज एट एनी पॉइंट इज 2x. किसी भी समय पर इस ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो रेट ऑफ चेंज क्या है? 2x है. सपोज एट x इज इक्वल टू 2, जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हो, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है? 4 है, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज 4. सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 टू द 8. इफ x इज इक्वल टू 5, देन y की वैल्यू क्या होगी? 10. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब है आप उसका स्लोप निकाल रहे हो. इफ यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, देन इट इज स्लोप ऑफ द फंक्शन. नाउ लेट अस सी वन सिंपल एग्जांपल. सबको पता है y इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्लोप, पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है tan थीटा. tan थीटा मतलब tan 0, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0. एंड दिस इज वाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है?
0 होता है. Suppose if I'll give you a function y is equal to 2x. Y is equal to 2x is a straight line as you can see in my figure. What is the slope? The slope is 2. So how will we do that? We have to use a rule, and what is the rule that we'll understand. So the rule says that the constant का derivative is 0 and x का derivative is 1. And अगर कोई भी लाइन दी है 2x, 3x, 4x, 5x तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है a. ax का डेरिवेटिव is a. So 2x का डेरिवेटिव will be 2, 3x का डेरिवेटिव will be 3, 4x का डेरिवेटिव will be 4, 5x का डेरिवेटिव will be 5 and so on. अगर हमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो वो 2x होगा. Now how do we do that? Square root of x can be written as, they have given you certain examples are there, but how do we use them? These are some of the common functions which we can learn because we have to find out the derivative. But how do we use? So first thing which you have to learn is that derivative of a constant is always 0. Now let us see this. This is called power rule. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जब भी आपको पावर रूल अप्लाई करना है, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n इज गिवन बाय n एक्स टू द पावर n माइनस 1. मतलब आप पावर को आगे ले आएंगे और एक पावर रिड्यूस कर देंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बिकम 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी. सो 3 माइनस 1 आंसर क्या हो गया? 2. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विल बी 3x स्क्वायर. ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स को पावर के अकॉर्डिंग लिखिए, एक्स की पावर -1. अब हमने रूल क्या कहा है? पावर आगे आएगी, -1 आगे आएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? एक रिड्यूस कर देंगे. सो दैट विल बी -2. सो -1 एक्स टू द पावर -2 विच कैन बी री रिटन एज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ सी दिस एग्जाम्पल अगेन डूइंग द पावर रूल. -1 आगे आया, एक्स की पावर कितना हो गया? -2. अब अगर सपोज उसके साथ एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस कर दिया 5x क्यूब, तो हम क्या करेंगे? 5 को अलग लिख देंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लेंगे. x क्यूब का डेरिवेटिव है 3 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 माइनस 1 विच इज 2. सो 5 इंटू 3x स्क्वायर. सो दैट मेक्स इट 15x स्क्वायर. रूल याद रखोगे, कांस्टेंट को अलग कर देना है और पावर का डेरिवेटिव करना है. पावर का डेरिवेटिव क्या कहता है? पावर आगे लिखो और x की पावर 1 कम कर दो. सो x क्यूब अगर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और आगे 3 आ जाएगा. सो दैट मेक्स इट 15x स्क्वायर. नाउ सी दिस एग्जांपल. दिस इज एडिशन, x स्क्वायर प्लस x क्यूब. सिंपल रूल है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करना है, दोनों को सम कर देना है. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, x की पावर 1, 3 आगे आएगा, x की पावर 2. दिस इज x क्यूब का डेरिवेटिव. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2x प्लस 3x स्क्वायर. सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव. सो आई हैव रिटन f डैश माइनस g डैश. v क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 आगे आएगा, v टू द पावर 2. v4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 आगे आएगा, v की पावर 3. सो द फाइनल आंसर इज 3v स्क्वायर माइनस 4v क्यूब. Now see which is combination of powers and constants. 5z का डेरिवेटिव, 5z स्क्वायर का डेरिवेटिव. तो सबसे पहले हम z स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं. 2z, 2 आगे आया, z की पावर 1. z क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आया, z की पावर 2. 4z4 कब डेरिवेटिव? 4 आगे आएगा, z की पावर 3. सो व्हाट इन ऑल वी आर डूइंग? और कॉन्स्टेंट्स को हमें क्या कर देना है? कॉपी कर देना है. सो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर प्लस z क्यूब का डेरिवेटिव -7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z टू द पावर 4. ये वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे एंड वील गेट द आंसर. सो रिमेंबर 2 थिंग्स विच वी हैव डन हियर. कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है और हमें डेरिवेटिव करना है तो पहले कांस्टेंट को हम सेपरेट कर देते हैं और फिर पावर रूल अप्लाई कर देते हैं. पावर रूल क्या कहता है? पावर आगे लगाओगे और पावर आगे लगाने के बाद में आपको क्या करना है? एक पावर रिड्यूस कर देना है. सो z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2z. z क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3z स्क्वायर. z4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4z क्यूब. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट.